good evening and welcome back to Knowledgeist. Do subscribe to Knowledgeist. Now the next circular of the month, formalization of micro enterprises and Udyam Assist platform. The Reserve Bank of India has issued a circular clarifying the formalization of IME portal or informal micro enterprises on the Udyam Assist platform. IMEs with an Udyam Assist certificate will be treated as MSME for the purpose of PSL. ठीक है, अभी छोटे से यूनिट जो हैं जिनके पास उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म का सर्टिफिकेशन है उन्हें पीएसएल में ट्रीट किया जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट. पीएसएल से हमेशा क्वेश्चन आता है. एवरी टाइम इन एग्जाम यू फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम द पीएसएल. ओके, नेक्स्ट. IMEs are enterprises unable to register in Udyam registration portal due to lack of mandatory documents like PAN and T. उद्यम आधार फॉर MSME. आप अगर MSME लेंडिंग करते हैं अपने बैंक में, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू ऑब्टेन ए उद्यम आधार. ठीक है, तो जिन लोगों के पास उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में उद्यम आधार नहीं है या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, अगर वो लोग IME में, ठीक है, IME में रजिस्टर करते हैं, उनको हम PSL में कैटेगराइज करेंगे. PSL में उनको MSME का दर्जा दिया जाएगा. दिस इज व्हाट दिस सर्कुलर वांट्स टू टेल यू. सो दिस इज ए न्यू एंट्रेंट इन PSL एंड आल्सो इन द MSME. सो नाउ IMEs, क्योंकि पैन कार्ड के लिए कुछ जरूर डॉक्यूमेंट चाहिए. GST नंबर किसे चाहिए? आज के डेट में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है per year, you need to obtain a GST in certificate. Okay, so if somebody is not having that much of turnover or is not able to produce a PAN card, still want to be treated as a MSME, then he has to be registered as a IME. And these enterprises are unable to avail benefits of government programs. And RBI clarifies that turnover exemption from filing under the Central Goods and Service Tax Act 2017 defines IMEs for the purpose of Udyam Assist portal. IMEs are enterprises not covered under GST Act. They are eligible for formalization under UAP to obtain Udyam Assist certificate. UAP is a platform launched by Ministry of MSME to facilitate formalization of IMEs through online generation of the certificate. You getting it? ठीक है, लॉन्च हो जाएगा. RRB का पहले आने दीजिए. लॉन्च कर देते हैं RRB का टेस्ट सीरीज. आप पुराना टेस्ट सीरीज भी दीजिए, नया आने दीजिए. टेस्ट सीरीज जो है RRB के लिए लास्ट मंथ की बात है. ठीक है, अभी आप नॉलेज गेन करिए, प्रैक्टिस करिए. बहुत सारे टेस्ट सीरीज अभी भी अपडेटेड हैं, तो प्रैक्टिस करिए. ओके, so the UAP assists the formalization of IMEs, designated agencies, including RBI regulated entities like Scheduled Commercial Bank, NBFCs, to facilitate the registration on the platform. The UAP and URP have an interface to enable transition or migration of IMEs from UAP to URP once they obtain the mandatory document. Formalization of IMEs onto the UAP allows them to treat it as MSME as per the PSL classification. Now IMEs can now avail the government benefits, schemes and program. ठीक है, तो IME के थ्रू जो भी एंटिटीज MSME से बाहर थे या फिर MSME के जो रेगुलर MSME का जो नियम था उससे दूर थे, अब उनको MSME का दर्जा दिया जाएगा थ्रू दिस. ओके, next, RBI's new rule on levy of charges on forex prepaid card and travel cards. What is the objective of this circular of the month? That regulate charges or fees on forex prepaid cards and travel cards payable in India. Denomination and settlement in rupees only. ठीक है, RBI बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सेटलमेंट रुपी में ही हो, ताकि हमें डॉलर खरीद और डॉलर की डिमांड इंडिया में इंक्रीज नहीं करना है. ठीक है, और ये जो है फॉर्मलाइज करना है, क्योंकि देखिए आपको चार्ज फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड और ट्रैवल कार्ड में चार्जेस वैरी करता है. कोई अपना क्रेडिट कार्ड लेके फॉरेन चला गया या फिर कोई फॉरेन कार्ड लेके इंडिया आ गया और ATM से मान लीजिए विड्रॉ कर लिया या फिर ट्रांजैक्शन कर लिया, बहुत ज्यादा फी डिडक्ट हो जाता है एंड दैट मेक्स द ट्रैवल वेरी इनकन्वीनियंट. ठीक है, टू मेक दैट टू फॉर्मलाइज दैट and to use rupee as a mode of settlement, this new circular has been issued.
Okay, Reserve Bank of India has introduced a new rule on the levy and charges of the forex prepaid cards, store value cards, travel cards, etc. that are payable in India. A circular released by Reserve Bank of India, it said that the charges or fees levied on these cards payable in India have to be denominated and settled in Indian rupee only, and the compliance and regulatory framework should be issued as per the FEMA Act 1999. कैच क्वेश्चन हियर, FEMA 1999 कौन से एक्ट को रिप्लेस किया है? Which act got replaced by the FEMA 1999? Tell me in comment section. And worth mentioning here is that Indians usually use forex cards, store value cards, travel cards, etc. while visiting the foreign countries. Right? Yes. Very good. Very good. It is FERA. Very good. अर्जुन घोष सर, पीएसएल में ट्रेड किया जाए, पीएसएल में ट्रीट किया जाएगा, ना ट्रेड किया जाएगा, पीएसएल में उसको ट्रीट किया जाएगा, आईएमई को एमएसएमई के अंदर, ठीक है। वेरी गुड, फेरा, वेरी गुड, एवरीबडी इज आंसरिंग फेरा फेरा फेरा, दे आर गेटिंग इट, सो मेनी कमेंट्स। अभिलाष महांती, वेरी गुड। आदित्य, ऑल योर comments are live on the screen. Yes, so now the transition from, मैंने बहुत बार, एक साल से मैं बोल रहा हूँ, जो लीबर था बहुत इंपॉर्टेंट, पहले लीबर मीबर के ऊपर आप आरआरबी में भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी में मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, प्रोफेशनल बैंकिंग में लीबर और मीबर के ऊपर बहुत क्वेश्चन। याद रखिए, लीबर और मीबर अभी नहीं है, एक साल से, एक साल क्या 2 साल से, December 31, 2021 से हम आरबीआई सर्कुलर में, करेंट बैंकिंग में, प्रोफेशनल बैंकिंग के क्लास में लिबर के हट जाने के ऊपर, और लिबर को जो एडमिनिस्टर कर रहे थे उनमें बहुत ज्यादा करप्शन था लंदन में, के ऊपर हमने बहुत सारे कंटेंट बनाए, ठीक है। अभी क्या है, आरबीआई ने इशू किया है नया एडवाइजरी, ताकि इजीली आप किसी दूसरे एआरआर में जा सकते हैं, अल्टरनेट रेफरेंस रेट उसे कहते हैं। लिबर एक अल्टरनेट रेफरेंस रेट है, यानी कि आप अगर इंटरनेशनल क्रेडिट डेबिट करते हैं, लोन लेंडिंग बोरोइंग करते हैं, तो आप कौन से रेट को इस्तेमाल करेंगे, कौन से इंटरेस्ट रेट को, जैसे इंडिया में कोई होम लोन लेता है, दैट इज रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक्ड होता है। जनरली आप जब भी लोन लेते हैं वो किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक होता है, ठीक है, नहीं तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है, बहुत सारे कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेके डिसाइड होता है, ठीक है। उसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट प्रिवेल करेगा, लिबर के ऊपर, किसी अल्टरनेट रेफरेंस रेट के ऊपर एक छोटा सा स्प्रेड कैलकुलेट करके रेट फिक्स किया जाता है, क्योंकि रेट वेरिएबल होता है। इंटरेस्ट रेट आज के डिमांड में, आज के डेट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कल रिसेशन का ईयर खत्म हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट फिर से कम हो जाए। अगर ऐसे में आपने 10% में रेट में लोन ले लिया, 3 साल के बाद ये 10% रेट 5% हो जाएगा, कस्टमर को नुकसान है। या फिर अगर अभी 5% रेट चल रहा है, मान लीजिए रिसेशन या फिर किसी कारण के बस वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाता है, बैंक को तो नुकसान है, ठीक है, जिसने लोन दिया है उसको, उसके लिए तो नुकसान है। तो ऐसे में आप एक एक्सटर्नल बेंचमार्क के ऊपर भरोसा करते हैं, तो लुकिंग इनटू द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, लुकिंग इनटू द कॉस्ट ऑफ फंड सिनेरियो, लुकिंग इनटू द फॉरेक्स सिनेरियो, लुकिंग इनटू द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, the rates fluctuate or are being decided. So LIBOR was such a rate which is widely for international lending and external commercial borrowings. But now there was some issues with LIBOR. That's why it has been done away with. That means Reserve Bank of India and many international banks have told their respective banks not to use LIBOR as a medium of lending. So it has been told for a smooth transition from LIBOR to any other possible alternate reference rate. तो कहते हैं, ये लिबर को क्या कहते हैं, अल्टरनेट रेफरेंस रेट, मैंने बार बार कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टरनेट रेफरेंस रेट। हमारे पुराने आरबीआई सर्कुलर में मैंने एक पूरा अल्टरनेट रेफरेंस रेट, कैसे सोनिया सोफिया जो भी है, टोक्यो इंटरनेशनल रेफरेंस रेट, सबका हमने एक लिस्ट आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है।
So efforts by banks, financial institution and industry associated have resulted in a smooth transition. अच्छा, ये जो अपडेट है आरबीआई सर्कुलर आरबीआई में आरबीआई का ये 2021 में एडवाइस किया था कि आप धीरे-धीरे ट्रांजिशन कर लीजिए 6 महीने के अंदर. But now they are saying that finally all Indian banks have come out of this lever framework. They have shifted to secured overnight financial rate or SOFR या फिर modified Mumbai interbank forward outright rate MMI ऑफर. ओके, ये लीबर के साथ मीबर लिंक्ड था. मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिंक्ड था मीबर. तो वो भी खत्म हो गया, वो भी उसका भी क्रेडिबिलिटी अंडर क्वेश्चन था. दैट्स व्हाई Indian banks were suggested to adopt other reference rates. So they have adopted other secured overnight financing rate and the modified Mumbai interbank forward overnight rate. Getting my point? Yes. In simple words, RBI has advised to transition from lever to any alternative reference rate by December 31st, 2021. Industry efforts have been led to a smooth transition, incorporating fallback clauses in the financial contracts. Certain lever settings are no longer published, and ARRs like SOFR and MMIFR are widely used for new transactions. You getting it? Simple word में क्या कहना चाहता है RBI? क्या कहना चाहता है आरबीआई? आपके ही सुविधा के लिए हमने बना दिया है. हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट अगर इंटरनेशनल लेटर ऑफ क्रेडिट भी जो थे वो भी डिसाइड होते थे लिबर के ऊपर. यू गेटिंग इट? समझ में आया अब तक जो मैं बोलना चाहता हूं? आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? However, there have been instances of few US dollar LIBOR-linked contracts undertaken after January 1st, 2022, and the process of inserting fallback clauses in all contracts is yet to be completed. After June 30, 2023, the remaining USD LIBOR settings will be permanently cease publication and the MIFR benchmark will also be discontinued. मिफर मॉडिफाइड मिफर अभी चल रहा है, खाली जो मिफर था वो भी उसका पब्लिकेशन बंद हो जाएगा. And the transition should be completed by June 2023. The complete transition will be completed by June 2023. And banks and financial institutions are now expected to have developed the system and process to manage the transition away from the lever from July 2023. क्योंकि लीबर के बारे में अब कोई बात नहीं होगा, कोई पब्लिकेशन नहीं होगा. और ये पब्लिकेशन करता कौन है इंडिया में? FBIL. ये जो अल्टरनेट रेफरेंस रेट का रेट्स हैं उसको पब्लिश इंडिया में कौन करता है? FBIL. इसका फुल फॉर्म मुझे बताइए, इसका फुल फॉर्म मुझे बताइए, मैं कमेंट ऑन कर देता हूं आपका. फुल फॉर्म बताइए मुझे. ये